Transportation. Okay, students, let's start our today's topic, that is transportation. Students, transport is a life process, or we can say transportation is a life process in which a substance absorbed in one part of the body of an organism is carried to other part of the body. That means transportation of substance from one part of the body to the another part of the body. That means suppose our lungs absorb, receive oxygen, and they have to transport this oxygen to the each and every cell of our body. This is the process of transportation. In large organisms such as plants and animals, they need transport system in their bodies to supply all cells with food, oxygen, water and other materials. As I have told you, in large organisms including human beings, each and every cells need food, oxygen and water. In this chapter, we will study the transport system of plants and of human beings also, and describes the various parts of this system. So let's start our topic. First of all, we will study the transportation system in plants. Transport system in plants is more elaborate than in animals. Plants are less active. We all know this. They are stable. So their cell do not need to supplied with material so quickly. Plants stable होते हैं, so they don't require the supply of material so quickly. उन्हें ज़रूरत नहीं होती कि बहुत जल्दी से उनके पास मेटल्स की सप्लाई हो. द प्लांट्स हैव टू टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू. प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के जो फंक्शन है वो दो टिश्यूज़ के द्वारा कंप्लीट होती है, एंड दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. Xylem tissues carry water and minerals, where phloem tissues carry food prepared by the leaves. Student, you can see in this diagram how the water and mineral transport from downward to upward, and how the transportation of food occurs in both direction, inward and outward, in both direction. By seeing this, we can clearly observe that the transportation of water is unidirectional, only in one direction, and the transportation of food is bidirectional, upward and outward both. Like this is downward and this is upward. Next, two transport system in plants. As I have told you, xylem carries water and mineral, phloem carries food. The transport of material in plants can be divided into two parts. Plants में जो material का transportation होता है वो दो parts में divide किया जा सकता है. Transport of water and minerals in plant, and transport of food and other substance like hormones in the plant. Water and minerals ये एक अलग system है, और food और hormones का transportation ये अलग सिस्टम है. दैट मीन्स प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के दो सिस्टम्स पाए जाते हैं. दे आर टू सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, पहला सिस्टम जिसमें वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंड दूसरा सिस्टम जिसमें फूड और अदर सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. हाउ, कैसे होता है ये? द वाटर एंड मिनरल डिजोल्व in it move from the root of the plants to its leaves through the two kinds of elements of xylem tissue called xylem vessels and xylem tracheids. Students, मिनरल और वाटर, मिनरल जो हम
खनिज पदार्थ, जो मिनरल्स हम वाटर को प्लांट्स को सप्लाई कराना चाहते हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व होती हैं और वो फिर रूट्स के द्वारा, वाटर अलोंग विद मिनरल्स डिज़ोल्व होते हैं, मिनरल्स वाटर में डिज़ोल्व फॉर्म में हैं, तो वो प्लांट की रूट्स के द्वारा लीव्स तक पहुंचते हैं दो टाइप्स की सेल्स के द्वारा, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकिड्स. वी ऑल नो that xylem tissue is made up of 4 kinds of cell: vessels, tracheids, fiber and parenchyma. इनमें से 2 सेल्स वेसल्स और ट्रैकिड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हेल्प करती हैं. xylem vessels and tracheids are both non-living conducting tissue which have thick walls. ये दोनों ही नॉन लिविंग होती हैं, थिक वॉल्स की बनी होती हैं. अब कैसे काम करती हैं देखिए. जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ. द जाइलम वेसल्स इज ए नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब विच इज रन लाइक ए ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट्स. पूरी ड्रेन पाइप की तरह, जैसे हम घरों में ड्रेन पाइप लगाते हैं, इस तरह से रूट से लेके लीव्स तक पूरा एक ड्रेनेज टाइप का सिस्टम होता है. जाइलम वेसल्स इज मेड अप ऑफ मैनी होलो डेड सेल्स जॉइंट एंड टू एंड. खोखली, होलो और डेड सेल्स की बनी होती हैं जिनके सिरे आपस में जुड़े होते हैं, जिनके एंड पॉइंट्स आपस में जुड़े होते हैं. जाइलम वेसल्स रन फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट राइट अप थ्रू द स्टेम एंड रीच द लीव्स. रूट से स्टार्ट होती हैं और लीव्स तक जाइलम वेसल्स फैली रहती है ताकि वाटर की सप्लाई कंप्लीट हो सके, पूरी तरह से वाटर सप्लाई रूट से स्टेम तक किया जा सके. ये था जाइलम वेसल्स के बारे में. अब ट्रैकिड्स के बारे में. ट्रैकिड्स आर लॉन्ग, ये लंबी होती हैं, थिन होती हैं, स्पिंडल शेप सेल्स होती हैं विद पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल्स. इनकी सेल वॉल्स में पिट्स होते हैं, होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं. वाटर फ्लोज फ्रॉम वन ट्रैकिड्स टू अनदर थ्रू दीज पिट्स. इन पिट्स के द्वारा ही एक ट्रैकिड सेल से दूसरी ट्रैकिड की सेल में वाटर फ्लो करता है. ट्रैकिड्स आर डेड सेल्स विद लिग्निन वॉल्स. लिग्निन वॉल्स का मतलब है लिग्निन की बनी हुई इनकी वॉल्स होती हैं. लेट मी शो यू. दीज आर द स्लाइड्स ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स स्टूडेंट. इन दिस यू कैन easily see this is the cell of trachid and these are the pits. ये पिट्स आपस में जॉइन है और इन पिट्स के द्वारा ही वाटर सप्लाई होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ वेसल्स. तो ये सारी एक ड्रेनेज सिस्टम की तरह हो गई और ये पूरा के पूरी सेल आपस में जुड़ी रहती हैं, इनके एंड पॉइंट्स जुड़े रहते हैं जिससे कि वाटर का कंडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली किया जा सके. नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स. हाउ दिस अकर्स, कैसे होता है. द प्लांट टेक इन वाटर फ्रॉम द सोयल थ्रू रूट्स. द रूट्स ऑफ ए प्लांट हैव हेयर्स कॉल्ड रूट हेयर्स. The function of root hairs is to absorb water and minerals from the soil. The root hairs are directly in contact of the film of water in between the soil particles. Water and dissolved minerals get into the root hair by the process of diffusion. The water absorbed by the root hair from the soil pass from cell to cell by osmosis through the epidermis, root cortex, endodermis and reach the root xylem. देखिए क्या होता है, प्लांट्स में जो वाटर एब्जॉर्ब करने का काम है वो सोयल करती हैं, रूट्स करती हैं. तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो सोयल में डिप रहती हैं, अंदर डिप रहती हैं. तो रूट्स से रूट हेयर्स निकलते हैं और वो रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को सोयल में से. फिर उन रूट हेयर्स से वो वाटर जाता है डिफ्यूज़न के द्वारा, रूट हेयर्स में आ गया सोयल से. फिर वाटर जो रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया है वो सेल बाय सेल जाता है ऑस्मोसिस के द्वारा. रूट हेयर की सेल से जाएगा वो एपिडर्मिस की सेल में, एपिडर्मिस की सेल से जाएगा कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से जाएगा एंडोडर्मिस में और एंडोडर्मिस से पहुंच जाएगा रूट जाइलम में. लेट मी शो यू द डायग्राम. सी, दीज आर द रूट हेयर्स, these are the root hairs. This is root hair and this is the soil particles and this is the film of water around the soil particles. Now root hair receive or absorb water by the process of diffusion. अब रूट हेयर की सेल में वाटर आ गया, यहाँ पर आ गया. अब सेल के अंदर जब आ गया
तो एक सेल से दूसरी सेल में, दूसरी से तीसरी सेल में ये जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये हमारी एपिडर्मिस की सेल है, एपिडर्मिस की सेल में ऑस्मोसिस के द्वारा चला गया, मोमेंट ऑफ सोलवेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फिर चला गया रूट कॉर्टेक्स में, वही ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा एक सेल से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, इसी तरह से धीरे धीरे ये चला जाएगा हमारे रूट जाइलम में। रूट जाइलम आ गया, रूट जाइलम से होते हुए फिर ये पहुंचेगा स्टेम जाइलम में, स्टेम जाइलम से फिर ये जाएगा लीफ में, और लीफ से फिर स्टोमेटा के द्वारा एक्सेसिव अमाउंट में जो वाटर एब्जॉर्ब किया गया है वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा वेपर की फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए, द जाइलम वेसल्स ऑफ रूट आर कनेक्टेड टू द जाइलम वेसल ऑफ स्टेम। जो रूट जाइलम है वो स्टेम जाइलम की वेसल से कनेक्टेड है, और वहाँ से वाटर रूट जाइलम से स्टेम जाइलम में चला गया, स्टेम जाइलम से वाटर चला गया लीव्स में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। और प्लांट्स जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसमें से केवल 1 या 2% वाटर वो यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए या अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। रेस्ट ऑफ वाटर, जो ज़्यादातर पानी है, वो लॉस्ट हो जाता है वेपर की फॉर्म में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। यहाँ पर रेस्पिरेशन लिखा गया है, दिस इज़ नॉट रेस्पिरेशन, दिस इज़ ट्रांसपीरेशन।